Hello everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel. I, Dr. Shamsher Singh, today discuss with you about hyperthyroidism. So, what is hyperthyroidism? What are the cause of hyperthyroidism? If you are suffering from hyperthyroidism, how can analyze what are the symptoms? So on the basis of symptom you can self analyze that if you are suffering from hyperthyroidism. एंड व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से ऐसे लैब टेस्ट यूज किए जाते हैं टू प्रिडिक्ट कि अगर आप हाइपरथायराइडिज्म से सफर करते हैं तो, एंड व्हाट आर द ड्रग्स विच आर यूज टू prevent this hyperthyroidism or to recover this hyperthyroidism. So dear students, firstly, I will say you hyperthyroidism is a problem where the thyroid gland which is present in the neck below your larynx produce more amount of T3 and T4. तो जब ये थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में T3 which is called as triiodothyronine and T4 which is called as a thyroxine इसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है and its concentration is increased in your blood, then we say you are suffering from hyperthyroidism, or you are having a hyperactive thyroid gland, or you are having a thyrotoxicosis. So बहुत से नाम है. Thyrotoxicosis mean when there is an increased production of T3 and T4. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि if you are suffering from hyperthyroidism, so what are the symptoms that will be appeared in your body? तो क्या क्या इसके लक्षण होंगे? The first symptom which is appeared in your body will be a excessive weight loss. तो डियर फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी का वेट जो है इट विल बी रिड्यूस विदाउट एनी एक्सरसाइज एंड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी. तो अगर आपका बॉडी वेट कम हो रहा है बिना एक्सरसाइज के, तो इसका मतलब यू मे बी सफरिंग फ्रॉम द hyperthyroidism. The reason, because whenever there will be an increase in T3 and T4 level in your blood, it will be responsible for fast metabolism of your any food product which you are taking. तो जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उस केस में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर लेस सप्लाइड टूवर्ड योर बॉडी पार्ट्स, एंड दैट्स व्हाई योर बॉडी विल बी मीन देयर विल बी अ रिड्यूस्ड एंड स्टार्ट टू रिड्यूस द बॉडी वेट. ये फर्स्ट सिम्टम आ जाता है. नाउ द सेकंड सिम्टम विच इज अपेयर्ड इन योर बॉडी विल बी ए एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन. जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से सफर करते हैं उनकी बॉडी में हीट बहुत प्रोड्यूस होता है और दे आर सेंसिटिव टूवर्ड हीट. वो कभी भी आउटसाइड सनलाइट को जल्दी सेंसिटाइज नहीं कर सकते. दे आर वेरी मच सेंसिटिव. दे आर नॉट टू मच टॉलरेटेड टूवर्ड द external heat or any kind of this type of the things. Now the third thing which is very important, अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो ये ध्यान दें कि either it can increase your heart rate. तो इन many of the patients ऐसा रिसर्च ने भी रिपोर्ट किया है कि if you are suffering from hyperthyroidism, your heart rate will be altered. सो इट मीन इरेगुलर हार्ट रेट, उसको हम अरिदमिया भी कहते हैं. सो दैट्स वाई इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी कार्डियक प्रॉब्लम, आपको CHF है जहाँ आप कोई मायोकार्डियल इनफाक्शन से सफर करते हैं जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो दैट मीन यू विल बी टू मच केयरफुल if you are suffering from this hyperthyroidism. The reason being, this altered metabolism will increase your heart rate, and this decrease heart rate can leads to arrhythmia. So chances of the death can be there. The next thing which is very important symptom will be excessive hungerness. तो आपका भूख जो है वो बढ़ जाएगा. तो इट मीन आपका एपेटाइट लेवल बढ़ जाता है. So you feel always that I should take something after few minutes. So that means your hungerness, your appetite will be increased. And then another symptom which can be appeared in some children's, that is a grave disease. तो grave disease जो कि autoimmune disease है, इन दैट देर इज ए बल्जिंग ऑफ आईज. कई बार अगर आपने देखा हो तो उनका आई साइज जो होता है, आई बॉल साइज बहुत बड़ा होता है. तो दैट इज द कंडीशन ऑफ ए ग्रेव्स डिजीज. तो उस केस में वो जो पेशेंट हैं, दोज हु सफर फ्रॉम द ग्रेव्स डिजीज,
they also suffer from the hyperthyroidism. तो ये और नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है नर्वसनेस। तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है उन लोगों को, वो नर्वस रहते हैं, एंजाइटी टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दैट मीन दिस इज अगेन ए साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट विल बी इंक्रीज स्वेट सिक्रीशन। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, स्वेट सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यू मे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म। इन केस ऑफ वुमेन्स, अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखें तो एज पर द रिसर्च रिपोर्ट्स एज वेल एज सम WHO रिपोर्ट्स, women are more suffering from hyperthyroidism as compared to males. So that mean in case of women, in case of females, there will be a irregular menstrual cycles. उनके जो menstruation हैं, menstrual cycles हैं, वो altered हो जाते हैं if they suffered from the hyperthyroidism. and और जो important symptom है, important लक्षण है, that is a muscle weakness, tiredness, fatigue. So these type of the symptom are very common if you are suffering from the hyperthyroidism. अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे होता है? नो, द फर्स्ट कॉज आई ऑलवेज सेज, द फर्स्ट थिंग इज ए स्ट्रेस। इफ यू आर टेकिंग एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस अल्टर्ड योर कॉर्टिसोल लेवल। देयर दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, in your blood, secreted by endocrine glands, because thyroid gland itself is a endocrine gland. तो ये जो कॉर्टिसोल्स हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं, दे अल्टर्ड, यू नो, they altered your heart rate, they altered your body rhythm, they altered your metabolism. So that's why the first thing which mostly we consider as per the research reports, that is due to stress. And stress can be of any type. आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, एनी अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस है, वर्क एसोसिएटेड स्ट्रेस है। सो दैट मीन दिस इज नॉट ए सिंगल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is a thyroid nodules. So sometime multi nodules are formed because it can easily examine, आप बहुत easily examine कर सकते हैं, physically examination कर सकते हैं कि in case of hyperthyroidism, ये जो नेक पार्ट में ग्लैंड होता है, इट इज बल्ज आउट, ये बड़ा हो जाता है, नेक विल बी हैवी। सो दैट मीन इन केस ऑफ थायराइड नोड्यूल फॉर्मेशन, समटाइम दिस नोड्यूल कैन बिकम ए कैंसरस। कई बार ये नोड्यूल्स होते हैं, ये बेनाइन ट्यूमर फॉर्म करते हैं, बेनाइन से फिर ये कैंसरस बन जाते हैं। सो दैट्स वाई हाइपरथायरॉयडिज्म इज नॉट, यू कैन से कि बहुत इजी इसको रिकवर कर लें। हाँ, यू कैन रिकवर इट इजी बाय यूजिंग सम नेचुरल सब्सटेंसेस, बाय यूजिंग सम मेडिसिन। आप इस लेक्चर को देखें, आई विल डिस्कस ऑल दी थिंग्स विद यू। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज इज एक्सेसिव आयोडीन इनटेक। तो कुछ लोग कई बार सॉल्ट इनटेक ज्यादा करते हैं, वो उसमें आयोडीन ज्यादा होता है, तो आयोडीन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज thyroiditis. So thyroiditis is the inflammation of your thyroid gland. And the next very important cause is autoimmune disease. Autoimmune mean if your self immune system is destroying your thyroid or hyperactivate your thyroid follicles. So that's why this hyperimmune response is also seen in some patients, in some children who are suffering from the Graves disease. तो इसलिए कुछ ऐसे बच्चे आपको दिखाई देते हैं जो ग्रेव्स डिजीज से सफर करते हैं। उनकी पहचान क्या है? उनकी बॉडी बहुत लीन होती है, उनकी आई बॉल का साइज बहुत बड़ा होता है। सो दैट मीन देयर लुक विल बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉज आई हैव डिस्कस विद यू। अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म से सफर करते हैं तो कैसे आप डायग्नोज करवा सकते हैं, कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, आई विल इन ब्रीफ डिस्कस विद यू। द फर्स्ट थिंग, इफ यू विजिट टू एनी डॉक्टर, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। वो आपकी नेक का फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, वो आपका हार्ट रेट चेक करता है, वो आपके जो हैंड है उसमें ट्रीमर्स इंटेंसिटी को देखता है। because tremor, if they are appeared normally, they can be due to hyperthyroidism, but if the tremors are on rest, it can be due to Parkinson, but most probably you know hyperthyroidism का जो पेशेंट है
उसमें ट्रिमर्स रहते हैं. So this is the physical examination of the doctor. The second test which you can perform is ECG, so that if a patient is having a arterial tachycardia, so अगर patient tachycardia से सफ़र करता है, उसका heart rate बढ़ा हुआ है, then from the ECG doctor can predict so that either there would be a problem of hyperthyroidism. Next जो third important आ जाता है वो आ जाता है T3, T4 एंड TSH लेवल एस्टिमेशन. तो कोई भी लेबोरेटरी पे अगर आप जाएं तो वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, या वो T3, T4 का टेस्ट करते हैं. तो उस रिपोर्ट से आपको पता चल जाता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम, हाइपरथायरॉयडिज्म और नॉट. देन देर इज ए रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट. तो ये भी एक टेस्ट किया जाता है जिसमें वी एडमिनिस्टर आयोडीन टू द पेशेंट एंड इट इज ए रेडियो लेबल्ड. तो उसमें क्या होता है, इफ देर इज ए इंक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन बाय योर थायराइड ग्लैंड एंड देर इज ए अकमुलेशन ऑफ दैट रेडियो एक्टिव मटीरियल इन द थायराइड ग्लैंड, दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द प्रोब. तो हमें प्रोब से पता चल जाता है कि क्या आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव आयोडीन इनटेक कर रहा है. तो ये कुछ लेबोरेटरी टेस्ट मैंने आपको बता दिए. अदर देन दैट आप अपना ECG करवा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, और अदर टेस्ट यू कैन परफॉर्म इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द कंडीशंस. अब आ जाता है हाउ टू मैनेज दिस हाइपरथायरॉयडिज्म. तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के लिए देयर आर सम ड्रग्स विच आर अवेलेबल. द फर्स्ट ड्रग और कॉल्ड एज थायराइड इनहिबिटर. तो जैसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, कार्बिमाजोल है, मेथिमाजोल है, ऐसी कुछ ड्रग्स हैं. बट अगर आप इन ड्रग को यूज करें तो ऑलवेज डिस्कस और ऑलवेज टेक ए कंसेंट फ्रॉम योर डॉक्टर. आप डॉक्टर से कंसेंट जरूर लें. क्यों? नॉर्मली क्या, जो कार्बिमाजोल है, न्योमर्काजोल है, एज ए ब्रांड नेम ऑफ दिस कार्बिमाजोल, it is available in the market at a dose of 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg. तो ये पेशेंट को थायराइड इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं वी ऑलवेज एडमिनिस्टर फॉर 8 to 12 वीक्स बिकॉज दे रिकवर द हाइपरथायराइड टू बिकम हाइपो. दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ T3, T4 विद इन 12 वीक्स. तो 2 मंथ 2.5 मंथ के अंदर अंदर अगर कोई भी पेशेंट कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोजोरेसिल लेता है तो उसका जो हाइपरथायराइड सिक्रीशन है इट इज सस्टेनडली रिड्यूस. बट अगर वो रिड्यूस नहीं होता तो इन केस ऑफ सम कैंसरस कंडीशन, इन केस ऑफ मल्टी नोड्यूल फॉर्मेशन, देन डॉक्टर समटाइम दे आल्सो आस्क द पेशेंट दैट यू गो फॉर द सर्जरी. तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्यू पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कट आउट. तो थायरोडेक्टोमी करते हैं, उसमें थायराइड का कुछ मास, जो कुछ वेट है उसको हम कट कर देते हैं, सो दैट ए लिटिल अमाउंट ऑफ थायराइड ग्लैंड विच इज अवेलेबल that can release a amount of thyroid hormone which is required to your body. उसके बाद जो थर्ड थेरेपी आ जाती है वो आ जाती है रेडियो आइसोटोप्स एसोसिएटेड. सो दिस इज लिटिल बिट ए हार्मफुल टेक्निक. समटाइम that in case of pregnancy, in case of patient with some other problem cannot go for these type of the things. So that's why, dear friends, it is very important that you must know from these lecture, these tests I have discussed with you. And the another important thing, the drugs which I have discussed with you, like radioactive iodine inhibitors, then I have discussed with T3, T4 inhibitors, then beta blockers are also used because patient is having a excessive heart rate, then tiredness, then tremors in the hand. तो प्रोप्रेनोलोल जो है वो साथ में कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. बट ये ध्यान रखें कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, नेवर टू एडमिनिस्टर सच टाइप ऑफ ड्रग विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर. सेकेंड थिंग, if you will use a long time propyl thiazolidine, carbimazole or some other drugs, they can increase or they can damage to your liver also. Hepatotoxicity can be there. So in this lecture I have discussed in brief with you about hyperthyroidism. You always like, watch and subscribe SSB YouTube Pharma Learning channel. You are welcome. Thank you very much.